کیا کبھی معذوروں کے جذبات کا سوچا ہے؟ ملک بھر میں خصوصی افراد کا اپنے عالمی دن پر قوم سے سوال، ریلیاں اور مظاہرے کر کے حکومت اور معاشرے کی ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی، کہتے ہیں ہمدردی نہیں، خصوصی توجہ چاہیے۔ بچوں کو معذوری سے بچانے والی خواتین رضاکار بھی تشدد کا شکار، ضلع قصور کے علاقے الہ آباد میں اوباش شخص کی خاتون ورکر سے گالن گلوچ ہراساں کیا، فیصل آباد میں بھی ویکسین پلانے پر پولیو رضاکار پر شہری کا تشدد۔ احساس مراکز پر بھی بے حسی، 3 روز سے بزرگ خواتین رقم کے لیے دھکے کھانے پر مجبور، کہیں کفالت پروگرام کی ڈیوائس خراب تو کہیں بینک کے ATM بند، خواتین کا رقم کی حصول کے لیے ہجوم، ماؤں کے ساتھ بچے بھی خوار۔ گجرانوالہ میں رینٹ کار کے نام پر نوسر بازیاں، شہریوں کی 22 گاڑیاں فروخت کرنے والا ملزم قانون کے ہتھے چڑھ گیا، متعدد گاڑیاں برآمد۔ بہاول نگر میں میونسپل انتظامیہ کی سنگین غفلت، سیوریج کے پانی سے گلیاں تالاب بن گئیں، میت کو لے جانے کے لیے گندے پانی سے گزرے، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ اور سرد موسم کی سوغات، ملک میں جا بجا مچھلیوں کے سٹال سج گئے، منگلا ڈیم کے اطراف دریا کی تازہ مچھلی کی لذیذ ڈشز کے شوقین افراد کا رش۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچانے والے رضاکار بھی تشدد کا شکار ہو رہے ہیں۔ فیصل آباد کے تھانہ منصور آباد میں پولیو کے قطرے پلانے پر جھگڑا ہوا، شہری نے پولیو ورکر کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا، اطلاع ملنے پر پولیس نے پہنچ کر کارروائی کی اور پولیس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ جھگڑا مبینہ طور پر پولیو کے قطرے پلانے پر ہوا۔ ادھر ضلع قصور کے علاقے الہ آباد میں بھی لیڈی پولیو ورکر سے اوباش شخص کی بدتمیزی ہوئی، ہراساں بھی کیا اور MOUC ڈھٹیاں محمد ارشد نے تھانہ کنگن پور پولیس کی درخواست دی کہ اوباش دیہاتی نے پولیو ٹیم کے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ FIR کے مطابق ملزم نے لیڈی پولیو ورکر کے ساتھ بد اخلاقی کی اور غلیظ گالیاں دی۔ گجرانوالہ میں پولیس نے رینٹ کار کے چکر میں شہریوں کی 22 گاڑیاں فروخت کرنے والے نوسر باز ملزم کو گرفتار کر کے متعدد گاڑیاں برآمد کر لی ہیں۔ ملزم رینٹ کار کے چکر میں کیسے 2 جگہ فراڈ کر کے رقم ہتھیاتا رہا، یہ ہم جانیں گے اپنے نمائندے شفقت عمران سے۔ جی بالکل CIA پولیس نے ایک ایسے ملزم کو گرفتار کیا ہے جس نے پورے شہر کے جو لوگوں کو اس طرح چکمہ دیکھ کر جو ہے وہ لاکھوں روپے کا چونا لگایا، نہ صرف چونا لگایا بلکہ ان کی گاڑیاں آگے فروخت کر دیں۔ اس سے بات کرتے ہیں کہ یہ کیا کرتا تھا، اس کی طریقہ واردات کیا تھا۔ کیا نام ہے بھائی تمہارا؟ امتیاز۔ امتیاز کیا گاڑی رینٹ پہ لیتے تھے، کیا کرتے تھے؟ رینٹ پہ لیتا تھا، تو پھر اس کے بعد سیل کر دیتا تھا۔ اس نے لگژری گاڑیاں فروخت کی ہیں، رینٹ پر لینے کے چکر میں دے کر آگے فروخت کر دی ہیں، چکمہ دے کر۔ گاڑیاں بھی برآمد ہوئی ہیں اور اس سے کیش کی ریکوری بھی ہوئی ہے، جو ہم اپنے طور پہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا بھی لوگوں کو کمپنسیٹ کیا جائے، لوگوں کو ریکوریاں ہوں۔ اس نے پورے شہر میں اس نیٹ ورک کو پھیلا کر 22 گاڑیاں جو ہے وہ ہتھیائی ہیں لوگوں سے۔ جی اور اب ایک نظر ڈالیں گے جرائم کی دیگر خبروں پر۔ چارسدہ میں CTD اور پولیس کا آپریشن، کالعدم تحریک طالبان کا مبینہ دہشت گرد گرفتار، دہشت گرد سے 2 دستی بم اور 1 کلاشنکوف بھی برآمد کر لی گئی۔ حکام کے مطابق زیر حراست شخص KP میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعات اور فوجی اہلکار سمیت خاصہ دار فورس کے 9 اہلکاروں کو شہید کرنے میں ملوث ہے۔ پھول نگر کے نواحی علاقے میں کریانے کی دکان پر ڈکیتی کی واردات کے دوران 3 مسلح ڈاکوؤں نے مزاحمت پر دکاندار کو گولی مار کر شدید زخمی کر دیا۔ دکاندار نے زخمی ہونے کے باوجود 1 ملزم کو قابو کر لیا جبکہ 2 ڈاکو موقع سے فرار ہو گئے۔ بورے والے میں خاتون کو اغوا کرنے کی غرض سے گھر میں داخل ہونے والا شخص اہل خانہ کے تشدد سے ہلاک ہو گیا۔ ملزم کی فائرنگ سے گھر کا ایک فرد بھی شدید زخمی ہوا۔
میرپور خاص میں پولیس میں بھرتی کے لیے آنے والا 22 سالہ نوجوان احمد علی دوڑ کے دوران انتقال کر گیا۔ فٹنس ٹیسٹ کے دوران 7 منٹ میں 1600 میٹر کی دوڑ لگانے کے دوران نوجوان کی حرکت قلب بند ہوئی۔ نئی بھرتیوں کے لیے پی سی بی گراؤنڈ میں ٹیسٹ لیا جا رہا تھا۔ نوجوان کی لاش سول اسپتال منتقل کر دی گئی۔ کیا کبھی معذوروں کے جذبات کا سوچا ہے؟ ملک بھر میں خصوصی افراد کا اپنے عالمی دن پر قوم سے سوال۔ شہر شہر گاؤں گاؤں ریلیاں اور مظاہرے کر کے حکومت، معاشرے اور مخیر حضرات کی ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی۔ کہتے ہیں ہمدردی نہیں، خصوصی توجہ چاہیے۔ ہمدردی نہیں، عملی اقدامات کریں۔ خصوصی افراد کی اپنے عالمی دن پر دہائیاں۔ ملک بھر میں معذوروں کی ریلیاں، سیمینارز اور پروگرام۔ خیبر پختونخوا کے ضلع ٹانک میں معذور فاؤنڈیشن جنوبی وزیرستان کی تقریب۔ چیئرمین فاؤنڈیشن جاوید محسود کا کہنا تھا، افغان جنگ سے متاثر جنوبی وزیرستان میں معذوروں کے لیے اسپتال اور ووکیشنل سینٹر بنایا جائے۔ حکومت کی جانب سے ملنے والا وظیفہ تک ختم کر دیا گیا۔ خیبر کی تحصیل جمرود میں خصوصی افراد نے تاریخی باب خیبر سے جمرود پریس کلب تک ریلی نکالی۔ ادھر کرک میں عالمی یوم معذور کے سلسلے میں تقریب ہوئی۔ 16 معذور افراد میں ویل چیئرز تقسیم کی گئیں۔ سندھ کے ضلع دادو میں معذور افراد نے ریلی نکالی۔ ان میں شریک افراد کا کہنا تھا کہ معاشرے کی ستم ظریفی اور حکومتی بے حسی کے باعث معذور افراد قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ٹھٹا میں بھی پریس کلب کے سامنے آگاہی کیمپ لگایا گیا۔ سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی اور خصوصی افراد کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ بلوچستان کے شہر سبی میں بھی معذوروں کا حکومتی عدم توجہی کا شکوہ۔ داد رسی نہ ہونے پر سڑکوں پر نکل آئے۔ معاشرے اور حکام کی توجہ اپنی حالت زار کی جانب مبذول کرائی۔ کہا، ایمرجنسی کیش پروگرام ہو یا کوئی اور منصوبہ، ہمیں نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ حوصلے بلند ہوں تو کوئی بھی معذوری منزل کے حصول میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ سیالکوٹ میں ہاتھوں سے معذور 28 سالہ عقیل نے یہ ثابت کر دکھایا۔ معذوروں کے عالمی دن پر دیکھتے ہیں عثمان اقبال کی رپورٹ۔ معذوری مجبوری نہیں۔ سیالکوٹ کا عقیل شاہ 6 سال کی عمر میں 11 kV کی ہائی پاور ٹینشن لائن کے کرنٹ کے باعث دونوں ہاتھوں سے محروم ہو گیا۔ عقیل پر 4 بہنوں اور 3 بھائیوں میں بڑا ہونے کے باعث ذمہ داریاں بھی بڑی ہیں۔ سارا کچھ میں یہ پورا نظام جہاں گھر کا میں وہ چلا رہا ہوں۔ اس کے بعد 4 بہنیں ہیں، 3 بھائی، ان کا بھی نظام میں چلا رہا ہوں، ان کی شادی بھی کرنی ہے۔ عقیل کا کہنا ہے دونوں ہاتھوں کے بغیر دن بھر مزدوری کرنا دشوار ہے۔ بہن بھائیوں کی شادی کی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں حکومت تعاون کرے۔ حکومت سے یہی اپیل کی جاتی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکتی ہے کہ آپ مجھے اچھی سی جاب دے دیں جس میں ایزی طریقے کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکوں۔ عزم و حوصلہ کی یہ جیتی جاگتی تصویر ریاست مدینہ کے دعوے دار حکمرانوں کی توجہ کی منتظر ہے۔ کیمرامین خالد فریدی کے ساتھ عثمان اقبال، نیو نیوز، سیالکوٹ۔ لیا میں معذور افراد میں احساس محرومی کم کرنے کے لیے پیس ٹو لائف کے زیر اہتمام ویل چیئر تقسیم کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں مختلف سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ لیا میں معذور افراد کی سہولت کے لیے نجی تنظیم پیس ٹو لائف کے زیر اہتمام 40 مزدور افراد میں ویل چیئر تقسیم کی گئیں۔ تقریب میں سماجی شخصیات نے شرکت کی اور تنظیم کے اقدام کو سراہا۔ ویل چیئر ملنے پر معذور بچی کی خوشی دیدنی۔ چیئرمین پیس ٹو لائف وقاص کا کہنا ہے، جنوبی پنجاب میں صحت کی سہولیات کے فقدان کے باعث معذور افراد کی تعداد زیادہ ہے۔ معذور افراد خصوصی توجہ کے مستحق ہوتے ہیں۔ جنوبی پنجاب میں ریشو کافی زیادہ ہے، وہ کیک وغیرہ وینگا کھانا ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ ہمارا ارادہ ہے کہ مزید کے لوگ جو مزید کے خاصے ہمارے پاس ہیں لوگوں کو بھی ہم ویل چیئر پرووائڈ کریں۔ سرکاری سطح پر بھی معذور افراد کو سہولیات دینے اور احساس محرومی کم کرنے کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ناصر حیات، نیو نیوز، لیا۔ ملتان میں معذور خواتین میں کوکنگ کا مقابلہ ہوا۔ بلند حوصلہ خواتین نے ثابت کیا کہ وہ کسی بھی عام خاتون سے کسی بھی طرح سے ہنر میں کم نہیں۔ رپورٹ کریں گے عدنان یعقوب۔ کوکنگ کے مقابلوں میں شرکت کرنے والی ان معذور خواتین میں ہر ایک کی اپنی ہی کہانی ہے۔ تلخ حالات کو شکست دیتی ہوئی ان معذور خواتین نے مزے مزے کے پکوان تیار کر کے سب کو حیران کر دیا۔
माजूर खवातीन ने चिकन कढ़ाई, बिरयानी, पकोड़े, कोरमा और कई लजीज डिशेस तैयार की। मैं 9 माह की थी तो डिसेबल हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं समझा। अपनी लाइफ के सारे काम खुद करती हूँ और मैं जॉब भी करती हूँ। और कुकिंग कंपटीशन में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे कंपटीशन होने चाहिए। बुलंद हौसले और पुख्ता इरादों की मालिक इन माजूर खवातीन ने अपने दुखों पर समझौता करके मेहनत करने को तरजीह दी। कुकिंग के मुकाबलों में आई ये खवातीन अपने घर के तमाम काम काज खुद सर अंजाम देती हैं। मैं कुकिंग भी कर रही हूँ, खुद कर रही हूँ। घर में भी तकरीबन अल्लाह का शुक्र है खुद ही सब कुछ कर लेती हूँ। एक आम फर्द की तरह, एक आम घरेलू खातून की तरह अपने घर में और माशरे में अपना मुस्बत किरदार अदा कर सकती हैं। खवातीन में कुकिंग के मुकाबलों का मकसद इन हुनरमंद माजूर खवातीन की हौसला अफजाई करना था। कैमरामैन काशिफ नवाज के साथ अदनान याकूब, न्यू न्यूज़ मुल्तान। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की खुशी में 1000 गरीब और मुस्तहिक खानदानों में राशन तकसीम किया गया। ये सामान ननकाना साहब में सिख इशूज़ कोऑर्डिनेटर शिमाली अमेरिका की जानिब से तकसीम किया गया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शाहनवाज कादरी वहीं पर मौजूद हैं, उनसे हम तफसीलात जानेंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट गुरु नानक हाई स्कूल में, जहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में कोऑर्डिनेटर सिख इशू के गुरबा में राशन तकसीम कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त उनके एक नुमाइंदे मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि उनका ये मकसद क्या है इधर आकर राशन तकसीम। हमारा यहाँ मकसद है 1000 फैमिली में राशन, मुस्तहिक लोगों में ना राशन तकसीम करने का। पंजाबी फाउंडेशन और जॉब्स इन जीटीए ने मिल के, आमिर खान साहब और गुरुचरण सिंह साहब ने मिल के इस 1000 फैमिली के लिए वहाँ से राशन भेजा है हमारे यहाँ पे मुस्तहिक लोगों के लिए। हम चाहते हैं कि और भी मतलब के लोग जो हैं हमारे ओवरसीज़ भाई वो भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। हाँ जी बिल्कुल, उनका कहना था कि हमारे जो और भी ओवरसीज़ भाई हैं वो भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले ताकि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा फलाह हो सके। जी, खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद। एहसास कफालत सेंटर पर बेहिस्सी, कहीं डिवाइस बंद तो कहीं बैंक्स के एटीएम्स खराब हैं। 3 रोज से बुजुर्ग खवातीन खार हो रही हैं। सवात, ओबाड़ो और कई दीगर इलाकों में खवातीन का पारा हाई हो गया। एहतजाज किया और रोड्स बंद कर दिए गए। एहसास प्रोग्राम में बेहिसी, कफालत प्रोग्राम की रकम लेने आने वाली खवातीन के लिए कोई इंतजाम नहीं, बैठने की जगह न पीने का पानी, अफसरान खुद गर्म कमरों में विराजमान, बुजुर्ग खवातीन सर्द मौसम में खार। सवात में खवातीन का एहतजाजी मुजाहरा, मैंगोरा कबल रोड को ब्लॉक कर दिया। कहा 3 रोज से कफालत मरकज का सिस्टम बंद है, रोज आते हैं खाली हाथ लौट जाते हैं। खवातीन की दुहाई। सिंध के इलाके उबाड़ों में रकम की अदायगी न होने पर खवातीन मुश्ताइल, कौमी शाहरा को ईंटें रखकर बंद कर दिया। असिस्टेंट डायरेक्टर इजाज अकबर ने एतराफ़ किया कफालत प्रोग्राम का डिवाइस सिस्टम बंद है, रकम मुंतकिल नहीं हो रही। उधर टंडोवाला यार में एहसास सेंटर पर कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी गयी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें जारी होने पर एहसास मराकज और बैंकों के बाहर मर्द और खवातीन का रश है। राजनपुर के एहसास सेंटर पर बदनज़मी के हवाले से न्यू न्यूज़ पर खबर के बाद असिस्टेंट कमिश्नर आसिफ इकबाल का दौरा, खवातीन के लिए इंतजार गाह बनाने की हिदायत की। न्यू सईदाबाद के मेन सिंधी प्राइमरी स्कूल में कायम शुदा एहसास कफालत सेंटर पर 500 से 1500 की गैर कानूनी कटौती खुलेआम जारी है। 12,000 से 500 रुपए कम हैं और इसके अलावा ये दुहाई दी जा रही है। खातून की वीडियो न्यू न्यूज़ को मौसूल हो गई, मुझे 11,500 रुपए दिए गए। मुतासरा खातून सीनियर पर इंचार्ज की 500 की गैर कानूनी खुलेआम कटौती वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती है। शौकत इमरानी से हम बात कर लेते हैं। शौकत, बताएगा ये मामला है क्या? शौकत, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो इस बारे में डिटेल्स दीजिएगा। जी बिल्कुल, न्यू सईदाबाद के मेन सिंधी प्राइमरी स्कूल में कायम शुदा एहसास कफालत सेंटर पर जो मुस्तकिल खवातीन को मिलने वाले 12,000 में से 500 से 15 तक की जो है गैर कानूनी कटौती की जा रही है। ऐसी शिकायत मौसूल होने पर जो है नियो की टीम कायम शुदा सेंटर पर पहुंची और जायजा लेने के बाद गैर कानूनी कटौती की वीडियो भी हासिल कर ली है, जिसमें वाज़ेह देखा जा सकता है कि 500 की गैर कानूनी कटौती होने पर जो मुतासरा खवातीन सरापा एहतजाज है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है सेंटर पर खुलेआम कटौती का सिलसिला जारी है। जबकि इंतजामिया की जानिब से
अभी तक किसी किस्म का जो है नोटिस नहीं लिया गया। जी, किसी भी किस्म का नोटिस नहीं लिया गया। शुक्रिया आपका शौकत। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, मनकीरा में 4 रोज से एहसास कफालत प्रोग्राम सेंटर की फ्रेंचाइज फिंगरप्रिंट्स डिवाइस खराब होने की वजह से रुकूम ना मिल सकी। एहसास कफालत सेंटर चक नंबर 71 ML में खवातीन खार होकर रह गई। पूरा दिन इंतजार करने के बाद खवातीन को खाली हाथ वापस जाना पड़ा। खवातीन ने एहतजाज करते हुए DC बखर से मुतालबा किया है कि फौरी नोटिस लें और रकम की फराहमी को आसान बनाएं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली की तदफीन उनके आबाई गांव रुझान जमाली में अदा कर दी गई। मैयत को पुलिस से चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी दी। नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में सियासी, समाजी, मजहबी और इलाकाई शख्सियात ने शिरकत की। इस पर हम बात कर लेते हैं। जाफराबाद से नुमाइंदा न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है ईसा मिंगल। ईसा, बताएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर-ए-आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली के नमाज जनाजा में उनके आबाई गाँव रुझान जमाली में अदा की गई। जनाजे में साबिक सूबाई वजीर वज़रा बलोचिस्तान के साबिक वज़ीर आला मीर जान मोहम्मद जमाली, उनके सरदार मीर हारून खान जमाली व दीगर इलाकाई मुतबरीन ने शिरकत की। जी ठीक है, शुक्रिया आपका ईसा मिंगल। बहावलनगर में टाउन कमेटी मंडी सादीगंज की गफलत और लापरवाही का एक और मंजर सामने आ गया। नाकिस इंतजामात के बायस सड़कें नदी नालों में तब्दील हो गईं और इसके अलावा जोड़की रोड पर खड़े पानी की वजह से जनाजा ले जाते हुए शहरियों को परेशानी का सामना है। जनाजे समेत गंदे पानी से गुजरकर कब्रिस्तान जाते हुए शहरियों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सड़कों पर खड़े पानी से गुजरते जनाजे की फुटेज टाउन कमेटी की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। जलालपुर पीरवाला पुलिस जराइम रोकने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। आए रोज शहरियों को डाकुओं असलहा के जोर पर लूटकर फरार हो जाते हैं। मदनी खान से मजीद तफसीलात लेंगे। जी बिल्कुल, तहसील जलालपुर पीरवाला में आए रोज़ बढ़ती हुई डकैती, चोरी और राहजनी की जो वारदातें हैं वो ज़्यादा हो चुकी हैं। कई बार शहरियों ने एहतजाज किया है। मैं अगर पिछले एक हफ्ते की बात करूं तो इस एक हफ्ते के अंदर 5 डकैतियां जो तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा की हुई हैं। लोगों के घरों के अंदर दाखिल होकर डकैतों ने असले के ज़ोर पर लोगों से माल छीना है। मगर पुलिस जलालपुर पीरवाला थाना सिटी और सदर दोनों की पुलिस जो है इनको रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि आला अफसरान इनका नोटिस लें और इनको ये जो बढ़ती हुई वारदातें हैं डकैती की, चोरी की, इनको रोका जाए ताकि शहरी अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ में महफूज करें। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। में शॉपिंग के लिए आने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नुमाइंदा न्यूज़ मोहम्मद इमरान गुराया हमें तफसीलात बताएंगे। जी बिल्कुल, शाहीनों के शहर सरगोदा में तजावजात की भरमार ही भरमार है। अगर बात की जाए कचहरी बाज़ार, अमीन बाज़ार, शरबत वाला चौक, मुसलम बाज़ार, लियाकत मार्केट, शाहीन चौक, रेल बाज़ार, कारखाना बाज़ार, उर्दू बाज़ार, फैसल बाज़ार और इसके साथ दीगर जो ब्लॉक्स हैं उनमें जो तजावजात जो हैं वो कैम की गई हैं। यहाँ पर जो ताजरों ने कई फीट तक जो है अपनी दुकानों के बाद जो है वो तजावजात कैम की हुई हैं। यहाँ पर ज़िली इंतज़ामिया और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम है। शहरियों का कहना है कि इस पर जो डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर हैं वो इस पर तवज्जो दे ताकि जो शहरी हैं ख़वातीन और मर्द बआसानी के साथ अपनी जो है शहर में आकर अपनी शॉपिंग कर सके और उनके गुजरने के लिए भी रास्ता हो। जी, हैदराबाद में सिंध हाई कोर्ट के अहकामात पर बल्दिया टाउन ने इंतजामी कार्रवाई की है और गुंजान आबाद इलाकों में अब भी कुत्ते इंसानी जानों के लिए खतरा बने हुए हैं। इस पर रिपोर्ट तैयार की है हैदराबाद के ब्यूरो चीफ नासिर शेख ने। हैदराबाद में आवारा कुत्तों की बढ़ती हुई तादाद शहरी आबादी के लिए खतरा बनती जा रही है। सिंध हाई कोर्ट के अहकामात पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हैदराबाद की इंतजामिया की जानिब से शहर, लतीफाबाद और कासमाबाद में कुत्ते मार मुहिम शुरू की हुई है, जिसके दौरान बड़ी तादाद में आवारा कुत्ते मारे गए। 1 नवंबर से मुहिम शुरू हुई थी हाई कोर्ट के ऑर्डर के तहत, तो उसके बाद ये मुसलसल कुत्ता मार
मुहिम चल रही है हमारी। शहर के गुंजान आबादी वाले इलाकों में आवारा कुत्ते अब भी घूमते नजर आते हैं, जो बच्चों और आम शहरियों को काटते और नुकसान पहुंचा रहे हैं। इधर हैदराबाद में सिविल अस्पताल के सिवाय और किसी सरकारी या निजी अस्पताल में कुत्ते के कांटे के इंजेक्शन भी दस्तयाब नहीं, जिसकी वजह से कुत्ते के कांटे के इलाज के लिए मुतासिरा अफराद मारे मारे फिरते हैं। कैमरामैन आदिल खान के साथ नासिर शेख, न्यू न्यूज़, हैदराबाद। कोरोना SOPs को हर जगह नजरअंदाज किया जा रहा है। जैकबाबाद शहर की मार्केट्स और सड़कों पर लोगों का जमे गफीर रहता है। एहतियात में गफलत बरतने के लिए शहरियों से सवाल हुआ तो अजीब मंतिक पेश की गई। असद अली मुगल हमें मज़ीद बताएंगे। कोरोना से बचना है तो अलग थलग रहना होगा। मुल्क भर में कोरोना की दूसरी लहर में इजाफे के बाद भी जैकबाबाद की अक्सर बाजारों में लोगों का रश मामूल बन चुका है। मौलिक वबा से बचाव के लिए इकदामात को नजरअंदाज करने वाले कातिल वबा के खतरात पर भी संजीदा नहीं। ना मास्क का इस्तेमाल और ना ही समाजी फासले की दूरी को यकीनी बनाया जा रहा है। आवाम जो है SOPs पर जो है ना वो तवज्जो नहीं दे रही है, लेकिन आवाम को तवज्जो देना चाहिए। एहतियाती तदाबीर को रोकने वाले कोरोना वायरस को ड्रामा करार दे रहे हैं। शहरियों से मास्क न पहनने की वजह पूछी तो अजीब जवाब पेश किए। कोई मरीज नहीं देखा है कोरोना का, ये सिर्फ ड्रामा है। ये आवाम को भूख मारने पर गामजन है। क्या वैसे कोरोना के अलावा लोग नहीं मरते थे? इनसे पूछा जाए ना। हमारे जैकाबाद में हमने कभी नहीं सुना है कि कोई मरीज है अभी जो है वो बहुत हो गया है कोरोना में, बुखार में वगैरह में, ये तो होता रहता है। बाकी ये सारा गवर्नमेंट का ढोंग है। SOPs तो अपनी जगह, लोगों को ना अपनी जान की परवाह और ना ही दूसरों की जिंदगी की फिक्र है। कोई माने या ना माने, कोरोना वायरस की सूरत संगीन होती चली जा रही है। आवाम को चाहिए वो इस कातिल वबा से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर जरूर इख्तियार करें। असद अली मुगल, नियो, जैकबाबाद। बाजारों में रेडीमेड रजाइयाँ और कंबल मौजूद हैं, लेकिन लोग कपास की रुई से तैयार लिहाफ खरीदने को तरजीह देते हैं। सरगोधा की जाहिदा बीबी रुई से दीदा ज़ेब रजाइयाँ तैयार करके फरोख्त करती हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद इमरान गुराया। सर्दी का मौसम शुरू होते ही जहां गर्म मलबूसात का इस्तेमाल शुरू हो गया है, वहीं कंबल और रजाइयों की खरीदो फरोख्त में भी तेजी आ गई है। अगरचे बाजार में रेडीमेड रजाइयां और कंबल फरोख्त हो रहे हैं, इसके बावजूद शहरियों की बहुत बड़ी तादाद खालिस कपा की रुई से गर्म लिहाफ तैयार करवाने में मसरूफ हैं। ਇਹ ਸਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਆਵੇ ਬਹੁਤਾ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਸਾਰੇ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। 30 साला ज़ैदा बीबी शोहर की बीमारी के बाद खुद ही दुकान पर रजाइयाँ तैयार करने में मसरूफ हैं। ज़ैदा बीबी का कहना है कि सर्दी का मौसम आते ही 8 माह बाद इनका कारोबार भी शुरू हो गया है। रजाइयाँ बनवाने के लिए आने वाले खरीदारों की आमद भी जारी है और इसे बेहतर मुनाफा भी मिल रहा है। हर साल हम यहाँ आते हैं रजाइयाँ भरवाने। बाजार की रजाइयाँ कोई नहीं सही होती हैं। बाजारी रजाइयाँ तो मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन इनके बावजूद शहरी हाथ से बनी हुई रजाइयों को फोकियत दे रहे हैं। मोहम्मद इमरान गुराया, न्यू न्यूज़, सरगोदा। बहावल नगर के नवाही इलाके में हाथ से बनाए जाने वाले लाचे और सिलारे शहर फरीद की पहचान होने के साथ साथ दुनिया भर में आज भी मकबूल हैं। मज़ीद जानेंगे तनवीर अहमद साबरी की रिपोर्ट में। पंजाब की सकाफत दुनिया भर में मुनफरिद मकाम रखती है। लाचे, सलारे, खेस, दोरा, दरिया, मजनू और लुंगियाँ पंजाब की सकाफत के रंग हैं, जिनकी अहमियत आज के दौरे जदीद में भी किसी सूरत कम नहीं हुई। बहावल नगर के इलाके शहर फरीद, जहां आज भी हुनरमंद खड्डियों पर हाथ से लाचों, सलारों और लुंगियों की तैयारी में मसरूफ हैं। ये सिलसिला गुज़िश्ता 600 साल की तारीख का हामिल है, जो नस्ल दर नस्ल चला आ रहा है। साडा कारोबार है लाचे बनावना, खेस बनावना, दोरा बनावने, सलारे। बड़े बड़े नवाब बंदा शौक होंदा सी, दस्ती काम पसंद करते सी। सानू इत्थे आया नू कम अज कम 500-600 साल हो गए। सलमे सितारों और सूती धागों को प्यार की चाहत के साथ परोया जाता है। सफेद धागे को रंग देते हुए बड़ी महारत से अलग अलग किया जाता है। फिर उनसे लाचे, सलारे और लुंगियां तैयार किए जाते हैं। कैमरामैन मोहम्मद जफर भट्टी के साथ तनवीर अहमद साबरी, न्यू न्यूज़, बहावल नगर। शहर शहर गाँव गाँव का अहवाल आप जान चुके। अब तक इतना ही। देखते रहिए न्यू।